جن کی باتوں کو، جن کے انداز کو، جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، انہی عالی مرتبت ذی وقار اولی العزم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جد و جہد کی، کس طرح انہوں نے کوشش فرمائی، کس طرح اپنی ساری قوم کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کس طرح انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں پیغام توحید بلند فرمایا، اور اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی پریشانی آئیں، جتنی بھی لوگوں نے ان کے خلاف مہم جوئی کی، جناب ابراہیم کھڑے رہے، حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی۔ جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ ان ساری آزمائشوں سے، ساری تکالیف سے، سارے دکھوں سے حضرت خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے، حضور تو امام ہے نا رسولوں کے، نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نا واری ہونے کو دل کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے۔ اگر بندہ ہونا صاحب دل، اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے، اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی، تو پھر وہ نا باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نا لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے۔ اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا، آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے، بڑا مزاج ہے، سب کو لقب چوری کرنے ہیں، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا۔ خلیل اللہ انہی کا لقب ہے، اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں محبوب ہوں۔ اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں، وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی، تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی، حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں۔ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر، ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام تو شانے دینے آئے ہیں نا، عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اور حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں، تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔
वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो मेरे दोस्त हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। और बात चीज़ें तो ऐसी बारीक हैं कि जैसे बंदा ज़्यादा गहराई में नहीं उतर जाता, ज़्यादा बारीक हो जाता है और चीज़ों को बड़ी करीब की सतह तक आके उस खूबसूरती और उसका हुस्न मुलाहिज़ा करता है, और इंसान उन सारी निस्बतों से भी प्यार करता है जिनका ताल्लुक महबूब से हो जाता है, उन गलियों से भी प्यार हो जाता है, उन रस्तों से भी प्यार हो जाता है। किसी ने बाबा फरीद से रास्ता पूछा था दिल्ली में, किसी शहर का, किसी मोहल्ले का, किसी इलाके का, तो फरमाने लगे नहीं आता। कब से हो दिल्ली में? फरमाने लगे सालों बीत गए। तो कहा गली का नहीं आता? कहने लगे दो रास्ते मुझे बिल्कुल सही आते हैं, दो बिल्कुल सही आते हैं रास्ते, बिल्कुल पक्के। एक जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के घर जाता है, और दूसरा अगर वो हुक्म दे तो जो वापस आता है। दो रास्ते, एक को यार दी याद पकाई है तो याद मुकम्मल की थी है। जो काम करने वाला था उसमें कोताही, वो उसमें कोई कज़ा नहीं किसी किस्म की। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यानी बंदा ना उन जगहों से भी प्यार करता है जिनकी महबूब से निस्बत हो, उन ताल्लुकात से भी प्यार करता है। हमारे यहाँ लोग ये काम नहीं करते। हमारे यहाँ लोग फर्द वाहिद से मोहब्बत करते हैं, निस्बतों को छोड़ जाते हैं। हम सादे लोग हैं ना। तो एक दफ़ा एक बुजुर्ग और हमारे अजीज़ों में से और उनकी अहलिया, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो अपने दामाद की कुछ शिकायतें और कुछ दुख बयान कर रहे थे। तो दुख बयान करते करते कह रहे थे मुंडा बड़ा चंगा है, घर दे नहीं सू ठीक, मुंडा बिल्कुल ठीक है, मां सिखाती है, बाप गलत गाइड करता है, को थोड़ा जा नुक्स पहना पाइया च भी है। तो मैं उनकी बातें सुन के हंस पड़ा। तो मुझे कहने लगे आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा जी बात है ना जिसकी माँ ठीक, ना जिसका बाप ठीक, ना जिसके वो खुद कैसे ठीक हो गया? ये अनोखी बात है कि उससे ताल्लुक रखने वाली कोई शय ठीक नहीं। और मैंने कहा वो भी उसी तरह का ही है, बस आप उसकी खताएं चशमपोशी कर रहे हैं क्योंकि निभा करना है ना, और बाकियों से आप तोड़ना चाह रहे हैं। यूं ना करें, जो ठीक होता है उसकी निस्बतें भी तकरीबन है, और अगर कोताहियां होती हैं तो फिर कमो बेश कोताहियां भी होती ही हैं। हमें समझना है इस बात को कि निस्बत जो हो ना, निस्बत उसका भी, अगर महबूब से प्यार है तो महबूब की औलाद पाक से भी प्यार। अगर हुजूर से प्यार तो जो हुजूर की गलियों में महबूब के साथ चलते थे सहाबा, उनसे भी प्यार। अगर महबूब से प्यार तो फिर हुजूर को मक्के से प्यार, तो हमें भी मक्के से प्यार। अगर महबूब से प्यार तो नबी पाक को शहर मदीना से मोहब्बत, तो हमारी मदीने पे जाने भी कुर्बान। और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक प्यारी तो हमें भी प्यारी, हुजूर को दाढ़ी शरीफ से मोहब्बत तो हमें भी बड़ी मोहब्बत, नबी पाक को किताब सुन्नत की तालीमात के इबलाग से शगफ तो हम जिंदगी लुटा देंगे इसी काम में। जो चीज हुजूर को प्यारी, निस्बतों का जो मनज होना चाहिए, जो इंसान के दिल में कदर होनी चाहिए, उससे कभी कोताही ना करें, वरना आहिस्ता 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 फिर इंसान असल से भी जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छिपकली को मार दो, छिपकली नजर आए मार दो। हुजूर इसका कसूर, जानवर तो बड़े घूमते हैं ना, और दर्जनों और बीसियों जानवर हैं, और हशरातुल अर्द हमें जमीन पे चलते दिखाई देते हैं, तो छिपकली ही को क्यों मारे? तो हुजूर फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है, महबूब फरमाने लगे छिपकली को मार दो, इसलिए कि जब जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग जलाई जा रही थी ना, तो ये छिपकली उसको फूंके मारती थी और जलाती थी। तो जनाबे इब्राहीम से अगर छिपकली भी इख्तलाफ करे तो हमें वो छिपकली भी पसंद नहीं। हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत, हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना गहरा दोस्त बनाया। आप उनकी जिंदगी को पढ़ें, कुरान पाक के अंदर जा बजा जनाब इब्राहीम का तज़किरा मिलेगा, और उसके अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत छलकती है, जो अपने मालिक से ताल्लुक नजर आता है। एक बंदा मोमिन की जो शान होनी चाहिए अपने रब के साथ, उसका जो रिश्ता होना चाहिए, उसकी सोचें, उसके नजरियात, उसकी कल्बी कैफियत, उसका तवक्कुल, उसका सब्र, उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें अपने मालिक के साथ किस तरह वाबस्ता होनी चाहिए। ये जनाब इब्राहीम की जिंदगी से यूं नूर फूटता है कि बंजर दिल भी आबाद हो जाते हैं, बेआबाद रूहों पर फूल खिलने लगते हैं। कुरान मजीद की सूरह शुअरा के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तज़किरा मिलता है कि वो अपने रब के बारे में किस तरह गुफ्तगू करते हैं, अपने मालिक का तारुफ लोगों को कराते हैं। तो किस तरह फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी अता करेगा। खाली मेरे रब ने मुझे पैदा नहीं किया, वो मुझे हिदायत भी अता करेगा। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, फरमाने लगे जब मैं बीमार होता हूँ ना तो वो मुझे शिफा अता करता है। ये अल्लाह करे आप कुरान मजीद के अल्फाज की लज्जत महसूस करें। मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, वही मुझे हिदायत देगा। मेरा रब वो है कि जो मुझे खिलाता और पिलाता है। मेरा रब वो है जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा रब वो है जो मेरी रूह कब्ज करेगा, मुझे वफात देगा और फिर मेरा रब मुझे जिंदा भी करेगा। और फरमाया वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन,
कुर्बान जाए। लफ्ज देखें, आजिज़ी देखें। अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं, खताओं से पाक होते हैं, लेकिन फरमाने लगे फिर मुझे उम्मीद है कि मेरा रब क़यामत के दिन मेरी खताएं भी माफ़ फरमा देगा, मेरा रब क़यामत के दिन मेरी खताएं भी माफ़ कर देगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मालिक का तारुफ करा रहे हैं, तज़किरा हो रहा है। सबसे पहले इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देगा। अल्लाह करीम ने ना इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, उसकी हिदायत का बंदोबस्त भी फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन में तशरीफ़ लाए तो रब करीम ने फरमाया जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना, ज़मीन पे उतर जाओ, और फिर जो शख्स फमन तबिया हुदाया, जो पैरवी करेगा ना उस हिदायत की जो मेरी तरफ से आएगी, तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उस बंदे पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है, कब? वही के जरिए, कुरान पाक के जरिए, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के जरिए अलैहिमुस्सलाम जो हिदायत आती, जो लोग उस हिदायत की पैरवी करते हैं। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह करीम ने फरमाया सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, फरमाया अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे बुलंद है, जिसने पैदा किया है, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, जिसने अंदाज़ा मुकर्रर किया है, और फिर जिसने हिदायत अता फरमाई। रब पैदा करता है, हिदायत देता है, और अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है, मैं एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, एक होता है कोई दानिश्वर आपको मुझे अपनी अकल के मुताबिक मोटिवेट करता है, वो जो अपनी अकल के मुताबिक हमें समझाते हैं उसमें नक्स रह जाते हैं, कमजोरियां रह जाती हैं। नबी जो समझाते हैं वो अल्लाह की वही के जरिए समझाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना बैठ के रो रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों जनाब उम्मे ऐमन के पास बैठे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी माँ है जनाब उम्मे ऐमन, रज़ाई वालदा है, हुज़ूर की बड़ी खिदमत की इन्होंने, वो रो रही हैं। तो शेखैन करीमैन दोनों पास बैठे थे, फरमाने लगे अम्मा जी आप क्यों रोती है? उन्होंने कहा इसलिए रो रही हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे अल्लाह ने तो महबूब को बुलंद शानें अता फरमाई हैं, हुजूर की अजमतें तो बुलंद से बुलंदतर हैं विसाल के बाद भी। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने जो जुमले कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगी मैं रो इसलिए रही हूँ कि हुजूर मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पर, तो जो आसमान से वही आती थी ना वो सिलसिला खत्म हो गया। वो जो अल्लाह का बंदों से राब्ता था, वो जो वही आती थी, वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत का बंदोबस्त करता है। जनाब इब्राहीम फरमा रहे हैं, कुरान मजीद उसका तज़किरा कर रहा। हमें वो हिदायत लेनी चाहिए जो किताब और सुन्नत से हमें मिलती है, वो रहनुमा उसूल लेने चाहिए जो हमें किताब और सुन्नत से मुयस्सर आते हैं। हमारे यहाँ बरादरी के रस्म रिवाज, कबाइली रस्म रिवाज, इलाकाई ज़रूरियात, और फिर ये कि मैं अब चूंकि फैशन बदल गया, अब चूंकि हालात बदल गए, इस तनाजुर में हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं। नतीजा जो निकलता है कि ज़माना गुजर गया है, हमारे हालात बेहतर होने को आ ही नहीं रहे। तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं रब ने मुझे पैदा किया और मेरा रब मुझे हिदायत भी अता फरमाता है। फिर फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है।